Assalamu alaikum, dear students, how are you all? Today is the third lecture of this subunit, and in this class we'll be discussing the laws of limiting friction. Which agar is pannis patnis class kun draw nazar that could explain the types of external friction. Take as the external friction has there are three types of external friction. Number one, static friction. Number two, limiting friction. Number three, kinetic friction. Kinetic friction is now dynamic friction. Take that was just limiting friction has go. This is the maximum value of static friction. Take yeah, it can is limiting friction that it can define as okay. Limiting friction has go the force of friction that comes into play when a body is at the verge of motion. When the body is at the verge of moving over the surface of another body. ठीक है ऐसा जो friction value आसन ठीक यम साजन आख body as at the verge of motion over the surface of another body. ठीक यम साजन अगर इस एमएस फोर्सेस applied forces थोड़ा ही बहुत increase करो the body will start moving. ठीक so this limiting friction is the maximum value of static friction. ठीक आज करो define the laws governing the limiting friction. ठीक laws of limiting friction. ठीक बस अगर इसमें limiting friction को अंदर there are four main laws of limiting friction. Number one, the magnitude of the force of limiting friction. The magnitude of the force of limiting friction. The magnitude of the force of limiting friction between any two surfaces in contact is directly proportional to normal reaction. The first law of limiting friction. ठीक first law of limiting friction क्या बना the magnitude of you see limiting friction छु अमिक magnitude हसा छु between any two surfaces या हसा छु directly proportional to the normal reaction. ठीक यानी कि the that is mathematically that is force of limiting friction force of limiting friction is directly proportional to normal reaction. ठीक यानी कि अगर ऐसा नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ते ज़्यादा अगर नॉर्मल रिएक्शन कम है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ते कम है ठीक या इस कम ऑटोमेटिकली ठीक दैट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ठीक उस नॉर्मल रिएक्शन से सुन नॉर्मल रिएक्शन से सारनी पता फॉर एग्जांपल अगर एक सरफेस ठीक अगर एक सरफेस ठीक एंड दिस अ बॉडी ठीक सपोज यम बॉडी हुन मास एम ठीक बोन कुन एम जी और कुन नॉर्मल रिएक्शन ठीक आर ठीक सो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या गो नॉर्मल रिएक्शन को ना सो फोर्स यूजन यमस बॉडी पे जो एक्ट करन को सरफेस यमस बॉडी पे एक्ट करन ठीक द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज directly proportional to normal reaction यानी कि देखिए इक्विलिब्रियम मिसाल बॉडी इक्विलिब्रियम में समझ आते हैं ना r बराबर mgs ठीक तब मतलब mg उसने ये बॉडी का वेट तब मतलब ना ये मिसाल mg ज़्यादा है r ज़्यादा ठीक mgs कम r कम ठीक mg क्या ये बॉडी का वेट यूता ये मिस बॉडी वेट ज़्यादा है यूता ज़्यादा फोर्स लगना है ज़रूरत टू डिस्प्लेस द बॉडी ठीक यूता ज़्यादा फोर्स यूता ये बॉडी का मास ज़्यादा है यूता ये मिस ऐसा कोई ऑब्जर्व भी करे था डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना ठीक यूता एक बॉडी का मास ज़्यादा आसन ठीक यूता एक बॉडी का मास ज़्यादा आसन यूता ज़्यादा फोर्स ये मिस लगन टू सेट द बॉडी इन मोशन ठीक ये बॉडी मोशन में आने खतर अगर मेरी बॉडी अगर ये वेट कम ठीक कम ही फोर्स लगे जरूरत टू मूव द बॉडी ठीक अगर ये बॉडी का वेट ज़्यादा ठीक तेल लगना ज़्यादा फोर्स जरूरत ठीक तेल लगना ज़्यादा फोर्स जरूरत क्या to displace the body ठीक to set the body in motion ठीक so this is the first law of limiting friction. The first law of limiting friction says that the force of limiting friction is directly proportional to normal reaction यानी कि
यूता जन बॉडी हुंद वजन ज्यादा है इनडायरेक्टली हेको ये वनित यूता जन बॉडी हुंद वजन ज्यादा है तूत नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू ज्यादा यूता नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तूता ज्यादा फोर्स लगे डिस्प्ले बॉडी ठीक दिस इज द फर्स्ट लॉ limiting friction the first law of limiting friction says the magnitude of the force of limiting friction you see limiting friction जो अमिक magnitude कुछ दोन सरफेसन दरमियान इन कॉन्टैक्टस में आसन ठीक यह हसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ठीक नंबर 1 ठीक यानी कि heavier the body more is the value of the limiting friction ठीक lighter the body lesser is the value of the force of limiting friction यह कहोगे ठीक नंबर 1 ठीक नंबर 2 number 2 is the direction of the force of limiting friction is always the direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is in the verge of motion. This is the second law of limiting friction. The direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is in the verge of motion. ठीक यानी कि इस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन छो ठीक अगर ये बॉडी छ ये तो समझाओ ठीक अगर ये बॉडी छ ठीक अगर वो बॉडी एक ये डायरेक्शन में एक फोर्स का अप्लाई कर ठीक एक ये बॉडी कर ना मूव ये डायरेक्शन में ठीक वो को डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक सेकंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या वना यस ये डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो जन देता यत केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन छ ऑलवेज अपोजिट ठीक या ऑलवेज अपोजिट to the direction in which the body is in the verge of motion ठीक अगर body यह direction में यचन ऐसे verge को यचन ऐसे ठीक यचन ऐसे move करूँ ठीक अगर body यह direction में यचन ऐसे move करूँ ठीक is the force of limiting friction से साथ ऐसे इस direction opposite साथ ऐसे की यह direction में ठीक अगर मैं body एक यह direction में ऐसे move यचन करूँ ठीक इस force of limiting friction से साथ आफ direction opposite यानी कि साथ पिंकन की यह direction में act करें ठीक यानी कि ठीक अगर इस बॉडी की यह डायरेक्शन में उसका फोर्स एक्ट करो ठीक वो अप्लाइड फोर्स ठीक देखिए हाँ तो अमुक अपोजिट ठीक है ये फोर्स ना अपोजिट डायरेक्शन में किया डायरेक्शन ठीक अपोजिट डायरेक्शन किया ठीक सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज इन द वर्ज ऑफ मोशन ठीक and the force of limiting friction always acts it always acts is a force of limiting friction it always acts tangential to the force of limiting friction always acts tangential to the surface of contact yeah at the surface of contact यानी कि you see force of limiting friction छो या सो act करना in the opposite direction to the applied force and yeah in the opposite direction in which the body is in the verge of motion ठीक बेहद सो force of limiting friction आसन tangentially it acts tangentially it can the normal reaction is perpendicular to the surface of contact they can show push force of limiting friction it always acts tangential to the surface of contact ठीक number 2 there is the second law of limiting friction ठीक number 3 is the force of limiting friction the force of
limiting friction. The force of limiting friction is independent of the apparent area of contact. So long as the normal reaction remains constant. ठीक, so long as the normal reaction remains constant. Very simple, huh? This is the number third. This is third law of limiting friction. The force of limiting friction using ये force of limiting friction चु इना सो चु depend करन. So ये is independent of इना सो चु depend करन. Is independent of the apparent area of contact. यानी कि ये कि अगर ये ब्लॉक छु ये ब्लॉक्स ना कि ये में से दिए दिखे this contact है ठीक. This is some area ठीक. This area is called apparent area of contact ठीक. So third law says that the force of limiting friction using force of limiting friction चु या सो चु independent इना सो चु depend करन. इना सो चु depend करन on the area of contact. कहाँ पे area of contact इस पे यानी कि ये body किस area है समझ चु ये मिस body की ये मिस body पे contact इस मिस ठीक. हाँ इना सो चु आप पे defend करन मगर तो ताई so long as the normal reaction remains constant मगर तो ताई ये ताई जन normal reaction constant है ठीक. उससे ये समझाने का भी कर बुकम अगर भी तो सर body है मन ठीक. Suppose ये body का mass चु m ये body का mass चु m बेसिक की area of contact हाँ area of contact निमन a ठीक. area of contact निमन a तो यह केस में निमन को force of limiting friction FL ठीक. आज ना ये force of limiting friction आज ना ये body है ना क्या force of limiting friction. Suppose FL is the force of limiting friction ठीक. उससे अगर भी ये body हम size increase कर ठीक मगर mass था उन constant एक ही हाँ ये body हम size कर increase ठीक मगर mass तो same ठीक. area was a ये था was A1 ये था A2 ठीक. युस यह केस में ये में बॉडी हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आस सुत FL यानी कि युस ये में बॉडी हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन को वैल्यू आस ती आस ये बॉडी हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन को वैल्यू ठीक. सो ये को ना कि ये में साजा ना अगर ये में मास चु m वेट चु mg नॉर्मल रिएक्शन चु r ये तो ऐसा ना नॉर्मल रिएक्शन आ रही है बिकॉज़ वेट चु सेम. सो ये को नॉर्मल रिएक्शन सेम आसुन ठीक. वो कि यमन दशवनी बॉडी अनहोंद force of limiting friction is same यानी कि force of limiting friction चुन अगर मैं mass change करूँ automatically the force of limiting friction will change. You should the force of limiting friction is independent of apparent area of contact. या सोचो independent इना सोचो force of limiting friction चुन depend करन का फिर apparent area of contact है यानी कि area of contact कोता शो ठीक मगर तो ताई जन नॉर्मल रिएक्शन क्या रोज कांस्टेंट ठीक. अगर नॉर्मल रिएक्शन है चेंज कर ठीक अगर वेट चेंज कर नॉर्मल रिएक्शन के चेंज ऑब्वियसली द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल चेंज ठीक. तवे छ सहित सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ठीक. जो ताई जन ये कि अगर ये मास m वेट इज mg सपोज इट r ठीक. मास m mg ये गो r तमल वो r इन दिस केस इज सेम बोथ द केसेस आर सेम ठीक. सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज independent of the area of contact so long as the normal reaction remains constant ठीक. Number 4 and last, the force of limiting friction between any two surfaces. The force of limiting friction between any two surfaces in contact depends on the nature of material of the surfaces in contact. Depends on the nature of surfaces in contact. This is the fourth law of limiting friction. यानी कि ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन छु कुछ दोन सरफेस दरमियान
यह also depend करन on the nature of surfaces in contact या on the smoothness of the surfaces, ठीक, या on their state of polish, या on their state of polish. ठीक सर. The force, this is the fourth law of limiting friction, ठीक. The force of limiting friction, you see force of limiting friction छो कुन ते दोन surface दरमियान यम जन contacts में आछन, ठीक. यह also depend करन on the nature of surface in contact, ठीक. For example, यह एक body या किसी ब्याग body, ठीक, एक है युस यमन दोन surface दरमियान force of limiting friction छो यह also depend करन एक यम किस material aspect the yem kis material aspect, ठीक. It always depends on, it also depends on the surface of, it also depends on the surfaces in contact. The force of limiting friction between two surfaces in contact depends on the nature वो ये कम किस्म का है, ठीक. अगर वो एक surface ये ब्याग surface, ठीक, एक यमन दोन surface force of friction है अलग, force of limiting friction है अलग, एक यमन दोन surface होता, एक यमन दोन surface in contact में, ठीक, यमन दोन surface force of limiting friction है अलग, यानी कि ये जो force of limiting friction जो यह सोचो डिपेंड करना है, यह सोचो डिपेंड करो on the nature of surface in contact, ठीक. फॉर एग्जांपल अगर वो ये surface पर मार्कर था, ठीक, योन force of limiting friction है अलग, अगर वो वुडन पीस था तमिस कैसे अलग, अगर वो मेटालिक पीस था तमिस कैसे अलग, अगर वो ग्लास था तमिस कैसे अलग, तम साथी यम साथन नॉर्मल रिएक्शन सेम दैस. So it also depends on the force of limiting friction between any two surfaces in contact depends on the nature of surfaces in contact. यहाँ से जो depend करना कुछ the force of limiting friction यहाँ से जो depend करन on the nature of surfaces in contact, ठीक. Now these are ठीक, these are the laws of limiting friction, ठीक. Now we'll verify these laws by an experiment, ठीक. So now we'll write experimental verification. Experimental verification of laws of limiting friction. Now we'll prove the results. Now we will prove the results of the laws of limiting friction by virtue of an experiment, ठीक. That is we'll verify the laws of limiting friction by an experiment, ठीक. इसका with this experiment, ठीक, by which we can verify first law, second law, third law, fourth law. First law says that the magnitude of the force of limiting friction between two surfaces in contact is directly proportional to normal reaction, ठीक. ये करो गणित prove, ठीक है. We'll verify the laws of limiting friction, ठीक. What's the verification, ठीक. First law गणित करो verify first law, ठीक. First law say that the magnitude of the force of limiting friction between any two surfaces in contact is directly proportional to the normal reaction, ठीक. What is experimental setup? उस चाहे इस गणित ला, सेकंड ला, थर्ड ला या फोर्थ ला वेरीफाई इस करो, ठीक. विशेष क्या करो कम इस करो कम विल टेक टू रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स विल टेक एक्चुअली जरूरत विल टेक टू वुडन ब्लॉक्स मगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है. इसमें जो हेवी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ वुड आइडेंटिकल, ठीक. यानी कि इसमें जो वुडन ब्लॉक्स रेक्टेंगुलर, ठीक, हम जन आइडेंटिकल आसन युहुद हर कह चीज सेम आस, वेट ते सेम, एरिया ते सेम, सरफेस एरिया प्रत कह चीज सेम, ठीक. सो दिस इज मास ते सेम, ठीक. दिस इज वुडन ब्लॉक B1, दिस इज वुडन ब्लॉक B2, ठीक. where B1 and B2 are identical, ठीक. ये में मास ते M, ये में मास ते M, ये में मास ते M, ठीक. तो पत करो कम यमिस वुडन ब्लॉक्स लागू ये हुक एक है एक यमिस तो लागू हुक, ठीक. सो अस क्या चीज ये कि यम laws of limiting friction वेरीफाई करने खतर लगन में कोने जरूरत, ठीक. टू आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक्स, ठीक.
तो बाद क्या कर बकम यमन दोनोनी आइडेंटिकल वुडन ब्लॉकन कर बकम आइडेंटिकल वुडन ब्लॉकन कर बकम अमन गण बकम हुक ठीक बोलन ठीक यमन ब्लॉकन हुन मास एम वेट mg ठीक यमुक तो वेट सेम ठीक एम पर क्या लगे जरूरत लगे जरूरत टेबल आप ठीक एम पर लगे जरूरत टेबल आप ठीक ये था suppose this is a table suppose this is a table ठीक थोड़ा बनाओ बॉडी कम suppose this is a table ठीक this is a table गणित में नीन क्या टू आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक्स ठीक तंपर हम बात टेबल ठीक दिस इज अ सर्टी सब टेबल ठीक एंड सपोज ये ग्राउंड किया था सर suppose this is ground उस एम पर क्या कर बकम एक यथस गण भी हमसा फ्रिक्शनलेस पुली मतलब पुली को सो बेयरिंग है ठीक पुली हाँ पुली मगर फ्रिक्शनलेस ठीक फ्रिक्शनलेस मतलब को ये में बेसिस फ्रिक्शन आसन की ठीक उस टाइम पर क्या कर बकम ये वुडन ब्लॉक है कि या वुडन ब्लॉक काम करूँ प्लीज आई प्लेस दिस वुडन ब्लॉक हाँ यह वुडन ब्लॉक B1 हाँ ये वुडन ब्लॉक B1 ये मास m तेल क्या वेट mg नॉर्मल रिएक्शन r ठीक क्योंकि यहाँ क्या बनी apparent area of contact हाँ this area of contact ठीक एक ये मिश्रित हुक ठीक एक ये हुक हम पर क्या कर बकम एक ये कुन गणन बात ठीक I will tie a string या थ्रेड हाँ कहाँ पान गणों की मिस हाँ I will tie a string ठीक over this frictionless pulley एक बढ़िया बना स्ट्रिंग थ्रेड हाँ एक ये गणन में क्या मिसकों एक ये मिस वुडन ब्लॉक इसको ठीक एक ये तस्वीर इसको ठीक वो क्या मौजूद गणन मौजूद ठीक तो बगर हम यूज बैक ऑन द एमी सेटरिंग ऊपर ठीक तब था वो ये साइड क्या बान गए ठीक सो दैट क्या करते हम एक ये था यहाँ एक यूज पैन हाँ पैन एक ये पैन समझ है कि वो वेट प्लेस ठीक वेट है कि वो ठीक so this is the required setup for verifying the 4 laws of limiting friction ठीक मैं क्या लग जरूरत नंबर 1 लगने जरूरत 2 identical wooden blocks of mass m ठीक नंबर 2 a table नंबर 3 एक string नंबर 4 pan तो बे ये तो सर पुली है ठीक फ्रिक्शनलेस पुली ठीक उस मेश करें मेश ना करूँ वेरीफाई कुम laws of limiting friction ठीक वन इस काम पर वेरीफाई फर्स्ट law of limiting friction ठीक उस गणित ला क्या माना द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि गणित में वेरीफाई करूँ एक F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये FL हाँ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ठीक उस मैं क्या करता हूँ बगैर एक बनाम यह ये था मास m ये था टेबल ये फ्रिक्शनलेस पुली पैन ठीक कुछ भी क्या करता हूँ ठीक बगैर ये पैन छो यह हम था वेट ठीक है कहाँ वेट था ना कहाँ वजन था वो ठीक उससे मास टू m एक ये था हाँ ये वजह से था एक ये में वजह से थी वेट से ऐसा यह था स्ट्रिंग में का फोर्स आई मजी ना m से दी ना कहाँ फोर्स ठीक उससे भी क्या करता हूँ ठीक बछाड़ सु फोर्स ठीक फॉर एग्जांपल P बछाड़न सु फोर्स यह पेटी बॉडी एज एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक है ना ठीक है अगर भी यह पैनल में इंक्रीज लग वेट लग थोड़ा बहुत इंक्रीज करो आप सिचुएशन में ना सर ठीक ये साथ जन बॉडी एज एट द वर्ज ऑफ मोशन यह फोर्सेस पेटी बॉडी एज एट द वर्ज ऑफ मोशन तमसी फोर्सेस वरना वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है एक ये कोना एक्सरसाइज ना एक ना एक दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स तो अपोजिट है कुछ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक एक है ना ये साथ भी यत मज वेट लाग इंक्रीज करूँ एट अ सिचुएशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द बॉडी विल बी एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक एक ये वेट को तक वेट को एक ये मन हो वजन प्लस पैन को वजन ठीक अप्लाइड फोर्स को ना
applied force is the sum of the weights of the pan and the weights ये weights में weight ये तो plus the weight of pan ठीक तो applied force ठीक वैसे experimentally अगर बह काम कर ठीक बह कर काम देखिए यह सिचुएशन में छाड़ बह applied force को ताश जरूरत है limiting friction खातर ठीक तो overcome the force of limiting friction ठीक suppose near for example सुधराव 10 न्यूटन ठीक अगर ये बॉडी मूव करने खतर कम से कम 10 न्यूटन जरूरत ठीक तेल वन 10 न्यूटन हसा गो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक गो अगर 10 न्यूटन फोर्स जरूरत टू डिस्प्लेस द बॉडी ठीक तेल वन बह सिचुएशन मज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कूता 10 न्यूटन ठीक मे वेरीफाई कर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ठीक ये नॉर्मल रिएक्शन आ ठीक सर अगर बह काम कर देखिए यमसी ब्लॉकस पे अगर बह काम कर सपोज ब्लॉक B1 अगर बह यमसी ब्लॉकस पे यह ब्लॉक B2 था नॉर्मल रिएक्शन क्या गो डबल ओता mg वह हो ब्याक mg वह गो 2 mg तमें गो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू क्या गो डबल ठीक बुझ अगर बह यह एक्सपेरिमेंट रिपीट करें ठीक ओता यूता वजन यथ मज थाउन पेव लिमिटिंग फ्रिक्शन मालूम करने खतर वनकन पे बराबर तो सरासर तमिक डबल वेट यथ मज प्लेस कर ठीक तेल बॉडी है ये यथ मज यथ पैनस मज वेट पतमे वेट खोट डबल करो ठीक ये सिस्टम एट द वर्ज ऑफ मोशन ठीक गो सो वैल्यू गो यथ केस मज experimentally it has been found that the value of the limiting friction for this case is 20 newton for example ठीक is double you should time को double ये साथ आके बॉडी का सेम मास m ठीक वो तेलुगु ना गणुक law of limiting friction verify that the law of limiting friction that the force of limiting friction is directly proportional to normal reaction we can go normal reaction double एक applied force to go double नॉर्मल रिएक्शन अगर 3 टाइम्स गई अगर बह ब्याक मास m थावन ठीक तो यमुक वैल्यू 30 न्यूटन 4 थाव 40 न्यूटन ठीक सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या was the value of the force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction ठीक गो एक्सपेरिमेंटली गो वेरीफाई कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक यानी कि युस ये सिचुएशन मज वजन ये जरूरत अगर बह ये पे ब्याक मास प्लेस कर ठीक आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक प्लेस कर ठीक वनकन तेल ये वजन कूत डबल जरूरत टू सेट द सिस्टम इन मोशन या ये सिस्टम एट द वर्ज ऑफ मोशन अन्न खतर जरूरत वनकन कूत डबल वेट ठीक वन डबल ये अगर गो 10 न्यूटन अगर बह ब्याक थावन तेल वो ब्याक थावन आइडेंटिकल तेल 30 ब्याक थावन आइडेंटिकल तेल 40 ठीक दैट मीन्स द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ठीक नंबर 1 वैसे नंबर 2 देखिए दोयम लॉ वेरीफाई करने खतर ठीक सेकंड लॉ दोयम लॉ क्या वना सेकंड लॉ टू वेरीफाई सेकंड लॉ सेम सेटअप इज रिक्वायर्ड ठीक दिस इज a table ठीक this is a frictionless pulley which mass m which is hook it is string over a frictionless pulley ठीक तो ये था स्पैन ठीक बुझ दोयम क्या बना एक ये बोना तेल एक ये यथ में वेट था यू अप्लाइड फोर्स एक अच्छे प्रूव करो ना the force of limiting friction is always the force of limiting friction P applied force is P is generally ठीक the force of limiting friction is the direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is in the verge of motion the force of limiting friction always acts tangential to the surface of contact ठीक with sir so with अगर वो वेट था कि मज this is the direction of applied force ठीक चूंकि अच्छे तेल कह फोर्स जरूरत कि यथ डायरेक्शन मज टू मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन या डायरेक्शन मज अगर बॉडी मूव कर डायरेक्शन मज फोर्स तेल जरूरत
according to Newton's third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction. ठीक है कि तेलाइस ना युकुन ती काम फोर्स अगर ये अप्लाइड फोर्स है तेलाइस ना युकुन ती काम फोर्स ना या अगर इस इक्विलिब्रियमस में थाओ इक्विलिब्रियमस में ठीक इक्विलिब्रियमस में चाहिए ना एक ये इक्विलिब्रियमस में ठीक ये कि अगर बॉडी का मास m वन कुन गोस mg थर्ड कुन गोस नॉर्मल रिएक्शन ये गो अप्लाइड फोर्स एक यम जायन अकिस बैलेंस कर r is equal to mg mg equal to opposite तेल ना f फोर्स बैलेंस कर अपोजिट डायरेक्शन में ठीक दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक सो उस अगर बह यह सिस्टम बदलावन ठीक अगर बह पुली यम साइड थवन तेल यम साइड वजन कर ठीक सो दैट बॉडी गई मूव योकन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन योकन ठीक गो अगर बह यह पुली अगर बह पुली साइड चेंज कर ठीक अगर बह पुली थवन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट is applied force is left as take. So by using this experiment we can prove that the direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is in the horizontal motion. Take the force of limiting friction always acts tangential to the surface. So obviously the force of limiting friction is tangential to the surface of contact. Take this proves the second law of limiting friction. Take number 3 the force of limiting friction is independent of area of contact so long as the normal reaction remains constant. ठीक यानी कि इसमें वही तो ना ये force of limiting friction छु इन आसा छु डिपेंड ही करन का पेट apparent area of contact पेट मगर तो ताई युतांजन यमन surface युतांजन normal reaction constant है ठीक उसे ये प्रूव करने खातिर कर बकम same experimental setup this is table this is a frictionless pulley. Suppose this is wooden block. This is wooden block. B1 mass m. B2 mass m. Pan. विंगन क्या बताऊँ विंगन कर यम वुडन ब्लॉक कर टाई कित ठीक गो ब्लॉक B1 यह गंडन बह ब्लॉक B1 गंडन बह B2 ठीक वह अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट गो ना एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी B1 प्लस एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी B2 ठीक वह अगर ये केस में छाड़ो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक एक वजन कोत सिंपली ये वजन वेट इन द पैन प्लस वेट ऑफ द पैन weight is in the pan of pan is kuta वजन जो ठीक including the weight of the pan gives the applied force gives the value of the applied force ठीक so force यह forces पर जन ये system में at the verge of motion temsi forces नहीं इसमें limiting friction को ना so value of the friction when the body is at the verge of motion ठीक अगर इस थोड़ा बहुत force applied force करो increase ये body ये motion में ठीक वैसे experimentally या वुश्न यूजन ये सिस्टम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटे यह सेम अगर बह काम कर बॉडी B1 पे थाव बॉडी B2 ठीक यथ केस मज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टी हसा यथ केसन मन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक वुच यमन दोन केसन मन क्या नॉर्मल रिएक्शन सेम mg ठीक mg गो यथस नॉर्मल रिएक्शन सेम ना कि नॉर्मल रिएक्शन को ना यथस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सेकंड बॉडी ठीक एक ये बॉडी का मास m तो ये गो mg ये मास m बे गो g mg प्लस mg गो 2mg ये मास m टोटल मास इज 2m बे गोस बोन को g गो 2mg ठीक वो नॉर्मल रिएक्शन ना दोनों सेम 2mg ये से mg प्लस mg गो 2mg ये से mg प्लस mg गो 2mg ठीक वो यमन दशवनी सिस्टम नॉर्मल रिएक्शन सेम ठीक यम साथ यमन दशवनी सिस्टम नॉर्मल रिएक्शन सेम एक्सपेरिमेंटली इट हैज मगर यथ एरिया ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट यथ अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट यम को डबल मगर experimentally it has been found that the value of limiting friction in both the cases is same. अगर experimentally वुचना एक ही है कुछ third law of limiting friction that the
value of limiting friction, that the force of limiting friction is independent of the apparent area of contact. इसके करो कम इस था वो ये में इस identical block जी कित के light load आके किसे ठीक तो साढ़ा force of limiting friction ठीक पर करो कम आग block था वो 20 पे ठीक ये तो साढ़ा force of limiting friction by adjusting the weights in the pan ये force of limiting friction of value ये था size ये ऐसा ये था तब मतलब गो ना तब मतलब क्या गो तब मतलब गो ये मन दशवानी system अनहोंद force of limiting friction जो same तब मतलब गो ये जो force of limiting friction जो ये ना सो शूटेल depend ही करन ये कैसे अलग अलग नहीं है मगर त्राना अलग अलग की इधर same तब मतलब गो ये जो force of limiting friction जो ये ऐसा जो independent of the apparent area of contact मगर तो टाइम ये तो जो normal reaction same है अगर ये तो बदल block था उन ये तो बदल block normal reaction को value को change the force of limiting friction will change ठीक तब मतलब गो ये जरूरत से था उनको so long as the normal reaction remains obviously अगर वजन बदला हो obviously the value of limiting friction will change ठीक मगर अगर वजन सेम था हो एरिया बड़ा हो घटा हो सेम था हो there is no change in the force of limiting friction that means the force of limiting friction is independent of apparent area of contact मगर तो ताई ये तंजन normal reaction क्या है same है ठीक this proves the third law of limiting friction ठीक number 4 चोरिम क्या छो चोरिम ला क्या बना the force of limiting friction between any two surfaces in contact depends on the nature of surface in contact ठीक है यानी कि जो force of limiting friction छो या सो डिपेंड करन या सो डिपेंड करन on the या सो डिपेंड कर on the nature of surfaces in contact ठीक ये सरफेस कांटेक्ट में आसन यू नेचर क्यों था ठीक फॉर एग्जांपल एक अगर वो था गिलास ब्लॉक ठीक ये था वुडन ब्लॉक या मेटालिक ब्लॉक तो वुडन ब्लॉक मेटालिक ब्लॉक तेरा जमा वुडन ब्लॉक आइडेंटिकल था आइडेंटिकल इफ आई टेक आइडेंटिकल वुडन एंड मेटालिक ब्लॉक्स ठीक ये में से दिस बुक ठीक दिस इज पैन ठीक this is wooden block this is pan experimentally या वो शुन ठीक ये में force of limiting friction जो अलग ये में force of limiting friction जो अलग ठीक वैसे अगर हम identical थे ऐसा यानी कि अगर हम normal reaction तो same है apparent area of contact तो same है तो the force of limiting friction in both is different ठीक यानी कि ये जो force of limiting friction छो ये ना जो खाली normal reaction weight पर तो depend करन के या जो depend करन body यम contacts में ऐसा यू nature क्यों था So, the force of limiting friction between any two surfaces in contact depends on the nature of surface in contact. ठीक, वैसे अगर smooth surfaces in contact experimentally या सोचो हम लोग the force of limiting friction is less. The force of limiting friction is less. ठीक, तो ये मिसाल rough surfaces in contact experimentally it has been found the force of limiting friction is more. ठीक, या इसके इंतहा को वैसे अगर ये लाइस verify करूँ ठीक, अगर भी यह है wooden block में ठीक, अगर भी यह है wooden block में ठीक. अगर भी यह है वुडन ब्लॉक में ठीक मगर कम आख साइड बनावे की वुडन ब्लॉक एक ही वुडन ब्लॉक आख साइड बनावे में सराफ बैक साइड हम पॉलिश ठीक ठीक है अगर विंकन काम कर ठीक विंकन करम बह काम एक ये ब्लॉक तुलन बह थोद थावन कित कन एक याक सरफेस अन बह इन कांटेक्ट विद टेबल ठीक ठीक यथ केस में फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तमिस कम वैल्यू ठीक अगर बह वन ये कित कन थावन ठीक अगर मुझे एक कहीं भी ये वुडन ब्लॉक था उन्हें किया था ठीक जो यथ केसेस में फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो साथ है ज्यादा वो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट ये सरफेस का नेचर क्या है गिलास अगर था उन्हें स्मूथ टू स्मूथ सरफेस अगर था इन कांटेक्ट देयरफॉर इन दैट केस द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस ये साथ रफ सरफेस था इन कांटेक्ट the force of limiting friction is more ठीक so the force of limiting friction depends on the nature of surface in contact ठीक ये उसको fourth law ठीक so the force of limiting friction between any two surfaces in contact depends on the nature of surfaces in contact ठीक so this was all about the experimental verification of the laws of limiting friction ठीक laws of limiting friction कितने 4 number 1
number, I'll recap it. The force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. Yeah, the force of limiting friction between any two surfaces in contact is directly proportional to normal reaction. ठीक, that means force of limiting friction is directly proportional to normal reaction. जो the normal reaction ज़्यादा है, जो the force of limiting friction ज़्यादा, जो the normal reaction कम है, to the कम है force of limiting friction. ठीक, अगर इस normal reaction को value double करो, force of limiting friction is double. सिंगल करो या सिंगल, 3 टाइम्स करो या 3 टाइम्स. ठीक, एक्सपेरिमेंट सेटअप किया. ठीक, ठीक है, इसमें हो अगर इस एक ब्लॉक पे बैक ब्लॉक था. ठीक, ये को आइडेंटिकल ये होता है इधर से हमको डाल. ठीक, सो नंबर 1, द फोर्स ऑफ द द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज directly proportional to normal reaction. The force of limiting friction between any two surfaces in contact is directly proportional to normal reaction. So this observe this करना. ठीक, ये तो एक बॉडी का वेट ज़्यादा है, तूता ज़्यादा फोर्सेस लगन टू डिस्प्लेस द बॉडी, टू सेट द बॉडी इन मोशन. ठीक, तूता ज़्यादा कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक, नंबर 1. नंबर 2, the direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is in the verge of motion. ठीक, अगर बॉडी यह डायरेक्शन में जैसे मूव कर, this force of limiting friction is always एम्स opposite. ठीक, एम्स opposite direction में. ठीक, and बेशु आसन ये and this act is tangential to the surface of contact. ठीक, बेशु आसन ये tangential to the surface of contact. it can be normal reaction to always. ठीक है, अगर एक इसका जो आग ब्लॉक एक normal reaction ऐसे इसके क्या normal reaction is perpendicular. ठीक, तो मगर force of limiting friction ये जो always tangential to the surface of contact. ठीक, ये तो experimentally थी कुछ. ठीक, नंबर 2. नंबर 3 फ्रेम क्या हुआ, the force of limiting friction is independent of apparent area of contact. ठीक, यानी कि जो force of limiting friction जो इन्हें से डिपेंड करने का है on the apparent area of contact. मगर तो होता है ये तो so long the normal reaction remains constant. मगर तो होता है ये तो इमन दोनों सरफेस दरमियान normal reaction वैल्यू सेम है. ठीक, obviously अगर इस वेट इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ठीक, normal reaction के चेंज तो एरियाज पर थाइन के लिए डिटेल करनी डिपेंड. अगर the value of limiting friction is independent of the apparent area of contact, इना जो area of contact इस पर डिपेंड ही करती है. मगर तो होता है ये तो normal reaction of value same or is constant rose. ठीक, नंबर 3. नंबर 4, the force of limiting friction between any two surfaces in contact depends on the nature of surface in contact. ठीक, on their states of polish. ठीक, यानी कि उसे force of limiting friction जो यहाँ से जो डिपेंड करा यहाँ से जो डिपेंड करना दारमदार था उनका पेट on the nature of surface in contact. surfaces ना इम surface contact में जाए जो nature के जो इनका polish है smooth है rough है यूं स्टेट ऑफ पॉलिश किट. ठीक, अगर रफ आसन तेल फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा ऑब्वियसली अगर स्मूथ आसन तेल फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कम. ठीक, विद दिस वी हैव एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ऑल द वेरी बेस्ट.